Hi friends, welcome to my channel Learning Made Easy. Now this video will be for grade 10. The chapter Harihar Kaka question answers will be explained in English here. And if you have not watched the summary, please go and watch that first. I will be putting its link in the description box. And the answers to this chapter, Harihar Kaka, are really very long. Some are very, very long. But it's easy to understand and easy to learn. You cannot exclude any points, and that's why I have included all of them. But if you want, if you prefer your notes, you can study that. But if you watch my video, I'm sure you'll get these points in your notes as well. So it will be very easy for you to understand and learn. Okay, so yeah, let's begin the question answer explanation. First question. कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है. So what is the sambandh, what is the relation between Kathavachak, Lekhak, author and Harihar Kaka is the question, and what is the reason behind their relation. Answer. हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. So हरिहर काका used to love the author very much from the author's childhood itself. ओके वे लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे. सो हरिहर काका यूज टू मेक द ऑथर सिट ऑन हिज कंधा मीन्स शोल्डर्स एंड घुमाया कर. ही यूज टू टेक हिम गो फॉर अ वॉक और टू डिफरेंट प्लेसेस. ओके एक पिता का अपने बच्चों के लिए जितना प्यार होता है, लेखक के अनुसार हरिहर काका का उसके लिए प्यार उससे भी अधिक था. So just like a father loves his child, according to Lekhak, according to author, Harihar Kaka had loved him even more than that. Okay, अधिक था, it was even more. जब लेखक व्यस्क हुआ या थोड़ा समझदार हुआ तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई थी. So when author had become a little big, when he became, an age of understanding everything, so the first friend the Lekhak had was Harihar Kaka. ओके दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप. उससे पहले हरिहर काका के गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी. सो बिफोर दैट, उससे पहले हरिहर काका डिडंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स इन द गांव मीन्स इन विलेज. ओके गहरी दोस्ती मीन्स डीप फ्रेंडशिप. सो हरिहर काका डिडंट हैव सच अ डीप फ्रेंडशिप विथ एनी वन till he got लेखक as a friend. Okay? लेखक कहता है कि जब हरिहर काका उसके पहले दोस्त बने तो उसे ऐसा लगा जैसे हरिहर काका ने भी लेखक से दोस्ती करने के लिए इतनी लंबी उम्र तक इंतज़ार किया. सो व्हेन ऑथर फेल्ट दैट हरिहर काका इज़ माय फर्स्ट फ्रेंड, the author Lekhak also felt that even Harihar Kaka was actually waiting for Lekhak to grow, to grow a bit big, because even Harihar Kaka didn't have any other friend beside Lekhak before Lekhak. Okay, before he met the author, he didn't have any friends. Just imagine, Harihar Kaka was an elder person, but he didn't have anybody with whom he had, a deep relationship of friendship. Okay, yeah. Lambi Umr means this long age. Okay, Harihar Kaka was elder to Lekhak, but he was actually intazar. He was waiting for Lekhak to get as a friend. This is how Lekhak feels. हरिहर काका उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाते थे, वे उससे सब कुछ खुलकर कह देते थे. सो हरिहर काका नेवर छुपाते थे मीन्स नेवर हिड एनीथिंग फ्रॉम लेखक. ही सेड एवरीथिंग, whatever was happening in the life of हरिहर काका, he used to share it with the author. इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक और हरिहर काका का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था. So from this we can understand that there was a very घनिष्ठ. if you find it difficult, you can just write गहरी संबंध था. गहरी means deep, संबंध means relation. That is enough. You don't have to write this word घनिष्ठ and all. Okay, so yeah, that is about the relationship between हरिहर काका and the author. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे. सो हरिहर काका, वाई डिड ही स्टार्टेड फीलिंग दैट महंत, महंत, the saint of the temples. Okay, if you have heard the story, you will know who Mahant is. So why did Harihar Kaka feel that Mahant and his own brothers, that was Harihar Kaka's brothers, they were of same shreni, they were of same category? Why did he feel that?
आंसर, कुछ दिनों तक तो हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका की सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते थे. सो फॉर सम डेज इन द बिगिनिंग हरिहर काकाज फैमिली मेम्बर्स, परिवार वाले फैमिली मेम्बर्स took care of him a very good manner. Okay, अच्छे से ध्यान रखते थे, मीन्स they used to take care of him very well. परंतु फिर कुछ दिनों बाद, but after few days, हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था. There were nobody who used to ask Harihar Kaka about his whereabouts, about what he wanted, nobody cared. हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था वही परोसा जाता था. So whatever was served, परोसा means to serve. So whatever remainings were there, bach jana means whatever remainings of their food and all were there in the house, that is what was served, परोसा जाता था to हरिहर काका. कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था. Sometimes हरिहर काका had to eat food that had no oil or ghee in it. It was रूखा सूखा means they were dry. Okay, for example, if it is roti, a dry roti, this is what he had to eat. And प्रसन्न रहना पड़ता था या खुश रहना पड़ता था. He had to be happy in it itself. अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति या मन की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता. So if Harihar Kaka's body was not feeling well, okay, the condition, sthiti means condition of body, or condition of man, of his mind was not well, he at that time musibaton ka pahad gir jata. This is a muhavra, you can note. It means all the difficulties comes over him. Okay, it's as if a big mountain of difficulty has fallen on him, because already nobody cares for him. And the days when he feels low, don't tell, I mean you can't say how difficult it was for him. क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था. दो ही बिलोंग टू सच बिग फैमिली, बिग परिवार, बट देयर वाज नोबडी टू इवन आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उन्हें खुद ही उठाना पड़ता. बरामदा मीन्स veranda in English. So anything that was over there, veranda, if Harihar Kaka wanted that, he's in the room and he wants that, there was nobody who would come and help him out with that. He had to, even if he was not well, he had to somehow get up, go and get it. Okay, so that was the condition. Now okay, that's not over. महंत हरिहर काका को समझाता था कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वो नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ इज़ महंत एंड द परिवार वाले और हिज ब्रदर्स सेम. सो नाउ वी हैव सीन हाउ हिज ब्रदर्स आर और हाउ हिज फैमिली इज़. नाउ लेट्स सी हाउ महंत इज़. महंत हरिहर काका को समझाता था कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे उनको भगवान के नाम लिख दे. सो महंत यूज्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट डू वन थिंग, whatever is property or land is there in your name, khet means land over here, you do one thing, you give it in the name of Bhagwan, God. Okay, ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी. So if you do this thing, you are straight away going to reach paradise. तीनों लोगों में उनकी प्रसिद्धि का ही गुणगान होगा. In all the three worlds, that is according to Hindu belief, there is a world before their birth, during their birth and after their birth, after their death. So in all the three worlds, Gungan means his appreciation will be sung. Okay, his fame, prasiddhi means about his fame will be sung by people even after his death. Okay, in all three worlds. जब तक इस दुनिया में चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग उन्हें याद किया करेंगे. So till there are sun and moon in this world, that is till the end of this world, everyone will remember you if you do this good thing. साधु संत भी उनके पाँव धोएंगे. All the saints will also wash your feet out of respect, out of love. Okay, महंत हरिहर काका से कहता था कि उनके हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं उसी के कारण उनके भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है. सो महंत यूज्ड टू से हरिहर काका दैट सिंस यू हैव दिस 15 cent ऑफ लैंड इन योर नेम, दैट इज़ व्हाई योर फैमिली मेम्बर्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू. That means if you give this in somebody else's name, they are no more going to care you. They are not going to care for you anymore. किसी दिन अगर हरिहर काका ये कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे. So Mahant is saying that the day you say that I'm going to give my land to somebody else, they will not even
talk to you. Okay, बात करना means he will not even talk to you. खून के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे. All खून के रिश्ते, blood relations will be finished. असल में हरिहर काका को समझ आ गया था कि दोनों ही उनसे उनकी ज़मीन के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं. सो हरिहर काका अंडरस्टूड दैट बोथ ऑफ देम, महंत एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, वर लविंग हिम ओनली फॉर दिस लैंड और प्रॉपर्टी. नहीं तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं. अदरवाइज नोबडी इवन वुड आस्क हिम अबाउट हिम, केयर फॉर हिम. इसीलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है. So about that village or that place, the way that the people in that village, the way they had the thoughts and their opinions, we can understand from the story. We can see different opinions people keeping. So from that, what can you understand about these village people? ओके, गाँव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति, व्हाट इज़ देयर कंडीशन. Okay, what is the condition, or what kind of people are there in that village is the question. What we can understand from the lesson. Answer: गांव के लोगों को भोला और अंधविश्वासी मनोवृत्ति का माना जाता है. So the people of that village are meant to be bhola, means very innocent. Okay, people who don't have much worldly experience or worldly knowledge. Okay, they are very bhola, and also andhavishwasi, superstitious belief. They keep a lot of superstitious belief. क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोगों का विश्वास ये बना होता है कि अगर उनकी फसल अच्छी हुई तो उसे वे अपनी मेहनत नहीं बल्कि भगवान की कृपा मानते हैं. बिकॉज we can see from the story that the people in the village, whenever they have a good fasal, means good harvest, okay, good harvest happens, actually it is because of them, their effort, but they think that this is only because of the blessings of God. Okay, whatever success comes in their life, that is only because of God. Okay, किसी के मुकदमे में जीत होती है तो उसका श्रेय भी भगवान को ही दिया जाता है. सो if anybody has won a case, मुकदमा case, okay, so if a person wins a case, that credit also, श्रेय means credit, that credit also goes to भगवान. लड़की की शादी अगर जल्दी तय हो जाती तो भी माना जाता है कि भगवान से मन्नत मांगने के कारण ऐसा हुआ है. So if a daughter's wedding has arranged, very early, that is also said to be according to the givings or the blessings of God. अपनी खुशी से गांव के लोग भगवान को बहुत कुछ दान में देते हैं. So out of happiness, because they feel all these happiness are from God, in return they give a lot of things to the God, in the name of God. कुछ तो अपने खेत का छोटा सा भाग भगवान के नाम कर देते हैं. Some people give a small portion of their land in the name of God. इसी बात का फ़ायदा महंत पुजारी और साधु संत लोग उठाते हैं. And what happens? The महंत पुजारी, the person who is doing all the rituals in the temple, or sadhu sant, the different saints or priests in the temple, what they do is they take advantage of this. फायदा means advantage. और भगवान को भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते हैं. भोग लगाना means food for भगवान. Okay, in the name of that, what they make people to cook halwa puri. It's a dish in the northern region, North India. So they make people make halwa puri and give it in the name of God, and they themselves eat. सारा काम वहाँ आए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते हैं. All the work are being done by these village people for God. The saints make them do. Okay, make the village people do work in the name of God. लोग ठाकुर बारी को पवित्र, निष्कलंक और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं. People believe that ठाकुर बारी, that place, is a very पवित्र, pure, निष्कलंक, again innocent, and ज्ञान का प्रतीक. Okay, a good knowledge about God. That is how people see. That is how the people in Thakur Bari is meant to be. That is how they are seen as. Okay, next question. अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं. कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए. So though हरिहर काका is unpad, illiterate, but he had good samaj, good experience, good knowledge, more than many literate people. Okay, so on the basis of the story you have to explain this. आंसर: जब हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका को उनके हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखवाने के लिए
कहा. So when Harihar Kaka's brothers asked him to write the portion of zameen or land in their name, in the name of Harihar Kaka's brothers, तो हरिहर काका बहुत सोचने के बाद अंत में इस परिणाम पर पहुँचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है. So Harihar Kaka thought a lot about that and he came to conclusion that when I am alive, जीते जी, when I am alive, to make someone else the swami here means the owner of the land, is not a right thing. फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत, be it. So Harihar Kaka thinks that be it his own brother or even the टेम्पल्स महंत. हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था. सो नाउ हरिहर काका रिमेंबर्स दोज पीपल इन द विलेज, गांव या इलाका, वट एवर यू से, दैट इलाका मीन्स लोकेलिटी, गांव मीन्स विलेज. ही रिमेंबर्स देयर वर पीपल हु हैड गिवन देयर जायदाद, देयर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ रिश्तेदार, in the name of different relatives. And what happened? They were actually forced out of their house, or the people started not taking care of them. Okay, the owner of the property, they were actually thrown out. उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था. Their life became just like the life of dogs. उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था. There were no one who used to ask for them. We have seen different old age homes where normally we see there are parents who who write the name of property in the name of their kids, and then what happens when they grow up, they just throw their parents out to old age homes and all these things. So you should never do such a mistake, writing properties in the name of relatives or your kids. Okay, हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई. सो हरिहर काका was not at all literate person, he was not पढ़े लिखे, but he could clearly understand each one of them, be it महंत or his brothers. उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी ज़मीन नहीं लिखेंगे. सो ही फैसला कर दिया, मीन्स he decided that when until I'm alive I'm not going to write the land in the name of these people. इससे पता चलता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं. सो ही हैड, though he was illiterate, हरिहर काका had more understanding about the people in the world. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? सो जबरन मीन्स फोर्सफुली. सो द पीपल हु हैड फोर्सफुली टेकन हरिहर काका, ओके, किडनैप्ड हिम, हु वर दे एंड व्हाट वाज द रीज़न, एंड कैसा बर्ताव किया, मीन्स हाउ डिड दे बिहेव विथ हरिहर काका? ओके, नेक्स्ट द आंसर इज हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के आदमी थे. सो द पीपल हु फोर्सफुली टुक हरिहर काका वर द पीपल ऑफ महंत. उन्होंने ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में हरिहर काका को हाथ और पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था. सो in a room in the ठाकुरबाड़ी he was kept over there, and his paw, his feet and his hands were tied, and also a piece of cloth was forcefully put inside his mouth. वे लोग काका को उस कमरे में इस तरह बांध कर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए थे और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती ले लिए थे. सो व्हाट दे डिड वाज they had tied very strongly Harihar Kaka, and what did they do? There were papers of property. Okay, on that they started taking signature or fingerprints. अंगूठे के निशान means fingerprints. ज़बरदस्ती means forcefully. They were taking the fingerprints of हरिहर काका on it. Okay, परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे. सो स्टिल हरिहर काका वॉज कमिंग, लुढ़कते हुए मीन्स समहाउ ही वॉज हॉपिंग एंड कमिंग टुवर्ड्स द दरवाज़ा, टुवर्ड्स द डोर, और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे. एंड ऑन द डोर ही स्टार्टेड गिविंग अ पुश विथ हिज, धक्का लगाना मीन्स टू पुश विथ हिज पैर, हिज फीट, और पुलिस उन्हें बचा सके. एंड सो दैट ताकि बाहर खड़े उनके भाई, सो दैट हिज ब्रदर्स हु वर स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड पुलिस, ओके, द पुलिस उन्हें बचा सके, वुड कम एंड हेल्प हिम.
That is what was happening with हरिहर काका at that time. Next question, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? So what were the opinions about the village people regarding the matter of हरिहर काका, and what were the reason for that is a question. आंसर, कहानी के आधार पर गांव के लोगों को ना तो महंत जी ने कुछ बताया था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ बताया था. सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आधार पर मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी, nobody had said anything about Harihar Kaka and all the problems that were happening. Neither did Mahant say about this to village people, nor did Harihar Kaka's family members. उसके बाद भी गांव के लोग सच्चाई से खुद ही परिचित हो गए. स्टिल द पीपल, द विलेज पीपल, दे बिकेम परिचित, मीन्स दे बिकेम फेमिलियर विद द स्टोरी, विद वॉट एवर वॉज हैपनिंग विद हरिहर काका. गांव के लोग जानते थे कि हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका का ध्यान नहीं रखते थे और इसी वजह से महंत जी हरिहर काका को सुख समृद्धि का लालच देकर ज़मीन ठाकुरबारी के नाम करवाना चाहते थे. सो द विलेज पीपल, दो nobody said them, they knew everything, that family members were disturbing हरिहर काका in the name of land, and also Mahant was asking him to give the piece of land in the name of ठाकुरबारी. And lalach means making him, so Sukh Samriddhi means this Mahant actually makes him think that you will be very pleased if you give this land in the name of God. You will have a life ahead will be so happy, happy life you will have ahead. People will remember you. You will be straight away taken to paradise. So giving all these kind of lalach, okay, he was actually making हरिहर काका राइट द लैंड इन द नेम ऑफ ठाकुरबारी. यही कारण था कि गांव वाले दो वर्गों में बांट गए थे. एंड दिस इज़ वाई द विलेज पीपल हैड एक्चुअली मूव्ड इनटू दो वर्ग. दे बिकेम इनटू टू सेपरेट पार्टीज, ओके, रिगार्डिंग द ओपिनियन अबाउट दिस. फिर तो गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था. So whenever these village people used to gather, they used to start talking on this topic continuously. Silsila means continuously, without stopping. The people in village. Why say village? In India itself, you can see normally these people in every locality, they know everything, whatever is happening in anybody's house, and they start giving opinions. They start talking about it. This is how people are. Not most of them, but some of them. हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी. एवरीवेयर ओनली दिस इज़ वॉट द टॉपिक वॉज. कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन भगवान के नाम लिखा दे. सो सम पीपल हैव द ओपिनियन दैट हरिहर काका हैज़ टू गिव द लैंड इन द नेम ऑफ गॉड. इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. उत्तम और अच्छा, नथिंग कैन बी मोर बेटर दैन दिस. इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी. सो वॉट विल हैपन, हरिहर काका विल गेट अ नेवर एंडिंग प्रसिद्धि, फेम, इफ़ ही डू दिस. इसके विपरीत कुछ लोगों की ये राय थी कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है. सम पीपल, द अदर्स हैड द ओपिनियन दैट द ब्रदर्स फैमिली आर जस्ट लाइक वंस ओन फैमिली. अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना है. इफ हरिहर काका डजंट गिव हिज प्रॉपर्टी टू द ब्रदर्स फैमिली, इट बिकम्स अन्याय, इनजस्टिस. खून के रिश्ते के बीच दीवार बन सकती है. खून के रिश्ते के बीच दीवार, प्लीज नोट दिस इज अगेन अ muhavra. This means that a divar, a wall can come between. There can be a crack in blood relation. Okay, between relatives there can be a crack. A fight between people. So some people had the opinion to give it to God, in the name of temple, Thakurbari. Some people had the opinion that it has to be given to the family members. नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा. अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं. ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है. सो दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम द चैप्टर. यू नीड टू एक्सप्लेन दिस लाइन वेर लेखक इज सेइंग दैट अज्ञान की स्थिति में, okay, when you are not having knowledge, अज्ञान means you don't have knowledge about something, in that condition मनुष्य मृत्यु से डरते हैं. at that time मनुष्य, human being, fears death. okay, ज्ञान होने के बाद, but once you get knowledge, you are not you're not scared about dying, okay, and you're ready to
वरण करने के लिए मीन्स यू आर रेडी टू डाई, तैयार हो जाते हैं, रेडी टू डाई वंस यू हैव अ नॉलेज अबाउट समथिंग। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन इज। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे तो वे बिल्कुल नहीं डरे। अगर वे हरिहर काका के अपहरण से पहले उन्हें डराते तो शायद वे डर जाते। सो when Harihar Kaka's brothers were actually dhamka rahe the, means they were actually speaking as if, you know, this is the last warning we are giving you. So they were actually making him scared. But Harihar Kaka was not at all scared because all these things are happening after his kidnapping. So if Harihar Kaka was, being made scared by the brothers before being kidnapped, he would have got scared. But after being kidnapped, now he's, he's ready for anything. He's not scared about anything. So now he's not scared about his brothers. हरिहर काका समझ गए थे कि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तभी वह मृत्यु से डरता है. And this is what here means, when he didn't have the knowledge about what would happen and all these kidnapping and all these things, he was scared. But after experiencing it, okay, now he's not scared. परंतु जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, वंस यू गेट नॉलेज और वंस यू गेट एक्सपीरियंस अबाउट समथिंग, वह ज़रूरत पड़ने पर मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है. व्हेन देयर इज़ अ नीड, ज़रूरत पड़ने पर दे आर रेडी टू इवन डाई. हरिहर काका ने सोच लिया था कि उनके भाई उन्हें एक बार ही मार दे तो सही है, लेकिन वे ज़मीन उनके नाम लिखकर अपनी पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर नहीं मरना चाहते. हरिहर काका thinks that if my family members wants, they can just kill me once, एक ही बार मार ले, but not, keep torturing him again and again. So हरिहर काका feels if he gives the land in the name of his family members, they are going to kill him, slowly. Okay, घुट कर means again and again he'll be blamed, he'll be, not taken care of. So slowly he'll be killed. But हरिहर काका thinks that I'm not going to give my land in their name so that they just kill me once. यह उन्हें ठीक नहीं लग रहा था. हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद के अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था. दिस हैज़ कम अर्लियर ऑल्सो. That is, Harihar Kaka remembers those people in their locality or in the village who had given their property in the name of their relatives. पहले तो रिश्तेदार बहुत आदर सम्मान करते हैं. In the beginning, all the relatives gives a lot of आदर सम्मान, respect to such people. परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है. But when they become old, even 2 times meal will also not be provided for them. That also becomes very difficult for them. बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते के जीवन की तरह हो जाता है. कुत्ता, dog. After some time their life becomes just like the dog. उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता. Nobody will be there who asks or takes care of them. हरिहर काका अपनी इस तरह की हालत से अच्छा एक बार ही मर जाना समझते थे. So हरिहर काका thinks that better than this is I die just once. नेक्स्ट क्वेश्चन. समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए. समाज, इन द सोसाइटी, व्हाट इज़ द अहमियत इम्पोर्टेंस ऑफ रिश्ता, ऑफ रिलेशन. यू नीड टू एक्सप्लेन दैट इन योर ओन वर्ड्स. आंसर. समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों, नातों का बहुत अधिक महत्व है. In the society to live happily, peacefully, there is a lot of importance of रिश्ते नाते, means relations. परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. बट इन टुडेज सोसाइटी इफ यू सी, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पारिवारिक, लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, ऑल दोज, that kind of values and कर्तव्य, responsibilities are being left behind, पीछे छोड़ देते हैं. आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है. Today the people have become very selfish, स्वार्थी, सेल्फिश. वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है. दे ओनली मीट पीपल फॉर देयर ओन नीड्स, फॉर देयर ओन एडवांटेज. वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज़ मिलना चाहता है परंतु अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागता है. दे वॉन्ट टू मीट देयर रिच रिलेटिव्स. अमीर मीन्स रिच रिलेटिव्स, बट दे वॉक अवे और रन फार अवे फ्रॉम देयर गरीब रिश्तेदार. गरीब रिश्तेदार मीन्स पुअर रिलेटिव्स. ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं. पीपल एक्चुअली मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग रिलेशनशिप विद पीपल ओनली टू द एक्सटेंट वेयर ऑल देयर सेल्फिश नीड्स आर बीइंग फुलफिल्ड. रोज़ अखबारों और खबरों में सुनने को मिलता है कि
डेली इन न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ वी कैन हियर दैट जायदाद के लिए लोग अपनी ही हत्या करने से भी नहीं झिझकते. सो पीपल इन द नेम ऑफ जायदाद, इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, they are not, झिझकना means to hesitate. They do not hesitate to even kill. अपनों की हत्या, हत्या means to kill. They do not hesitate to kill even their own relation, okay, their own blood relations. People are ready to kill them in the name of property. We know, we ourselves have heard many of the cases through news and we read it in newspapers. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस तरह मदद करेंगे? इफ़ यू हैव अ पर्सन जस्ट लाइक हरिहर काका, हाउ विल यू हेल्प दैट पर्सन? मदद करेंगे, टू हेल्प. ओके, हाउ विल यू डू दैट? आंसर, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई व्यक्ति होगा तो हम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू हेल्प आउट इन ऑल ऑल द काइंड ऑफ वेज वी कैन डू. आजकल बहुत सी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो इस तरह से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करती हैं. टुडे देयर आर मेनी सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशंस, okay, who take care. स्वयं सेवी मीन्स सेल्फ सर्विंग संस्थाएं, institutions who take care of such पीड़ित व्यक्ति, okay, who are undergoing such kind of a situation. There are different institutions for them. हम उनसे मदद लेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ देम. उस व्यक्ति से खुद भी बात करेंगे और कारण का पता करने की कोशिश करेंगे. एंड वील ऑल्सो स्पीक आवर सेल्व्स टू दैट विक्टिम, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. हम उस व्यक्ति को खुशी से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रेरित करेंगे. वी विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस दैट पर्सन एंड वील टेल देम टू लिव देयर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ हैप्पीली. ओके, दे हैव टू, गुजारना मीन्स दे हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन अ हैप्पी मैनर. वी विल स्पीक अबाउट दिस विद दैट पर्सन. और अगर संभव हो तो उसके परिवार वालों से भी बात करके उनके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे. And also, if possible, we'll speak to their family members and help them improve their bigda hua rishta. Okay, the relation that has become spoiled. We'll try to join that relation again. Okay, we'll try to make them one again. Okay, to unite them together. लास्ट क्वेश्चन, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए. इफ़ देयर वाज रीच ऑफ मीडिया इन हरिहर काकाज विलेज, व्हाट वुड बी द कंडीशन? वी हैव टू राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स. हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो शायद उनकी इतनी ख़राब हालत नहीं होती. सो इफ़ देयर वाज द रीच ऑफ मीडिया, द कंडीशन वुडंट बी दिस बैड. सबकी पोल खुल जाती. सबकी पोल खुल जाना मीन्स द रियल फेसेस ऑफ एवरीवन वुड बी ओपन, इट वुड बी कमिंग आउट. मीडिया हरिहर काका के साथ हुए अत्याचारों को सभी के सामने लाती. मीडिया वुड ब्रिंग आउट ऑल द काइंड ऑफ अत्याचार. अत्याचार मीन्स ऑल द काइंड ऑफ अटैक्स और बैड थिंग्स दैट पीपल वर डूइंग विथ हरिहर काका. दिस वुड हैव सामने लाती. दिस वुड हैव कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. वे लोग जो बेसहारा बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं, the people who hurt or attack, okay, the people who attack or hurt such besahara, a person who has no one of their own, बुजुर्ग, ओल्ड पीपल, ओके, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. ओके, द पीपल हु गो टू एनी एक्सटेंट, ओके, किसी भी हद तक, द पीपल हु गो टू एनी एक्सटेंट टू टेक संपत्ति, प्रॉपर्टी हड़पने की, टू टेक the property of such, besahara, those who don't have anybody's support, the people who try to take such kind of people's property, to take the custody of their property, उन लोगों को सामने लाकर मीडिया उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर सकता है. सो इवन द मीडिया कैन गेट प्रूफ. सबूत मीन्स प्रूफ अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पीपल एंड ब्रिंग इट आउट इन द आईज ऑफ ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड. और यही होता अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती. एंड दिस वुड ओनली हैपन इफ इन हरिहर काका's village also media had its reach. Now this is the end of this video and I hope it was clear. It has really long answers, but if you understand the story then it's very easy to write the answers. So still, if you have any doubt, please ask me. And your boards are anyways, it's on May, so you have time to prepare. Don't take a lot of stress, just focus and everything is going to get very easy. So yeah, all the best. Thank you for watching my video. Keep supporting.